नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना के रियासती वज़रा इटाला राजेंद्र और टी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के सरकारी दवाखाने गांधी हॉस्पिटल का आज दौरा करते हुए इलाज व मुआवजे का जायजा लिया और बतलाया कि डेंगू फीवर का इलाज मुमकिन हो गया है, लिहाजा घबराने की कोई बात नहीं है। इस बीमारी के चलते गांधी और नीलोफर हॉस्पिटल्स में केसेस तो आए, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है। वैसे सीएम केसीआर की हिदायत पर अभी सभी सरकारी दवाखानों में शाम की आउट पेशेंट सर्विसेज भी शुरू कर दी गई हैं। इन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो अपने इलाकों की सफाई की जानिब ध्यान दें, पानी गर्म करके पिएं, जबकि जीएचएमसी को मच्छर कश अद्वियात के छिड़काव के लिए पाबंद किया गया है। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज बस्ती दर्शन के तहत बोराबंडा के वीकर सेक्शन साइट 3 का दौरा करते हुए वहां के मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ जीएचएमसी के डीसी रमेश, डीईई राजकुमार, एई जमील, वाटर वर्क्स के मैनेजर सुरेश के साथ साथ दीगर बहुत सारे महकमों के भी लोग मौजूद रहे। तेलंगाना कांग्रेस के अहम लीडर और एमएलए भट्टी विक्रमार्का ने आज अपनी एक प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत पर अपनी तनकीदों को जारी रखते हुए बतलाया कि सारी रियासत अभी वबाई अमराज से जूझ रही है और सीएम केसीआर अपनी खुदनुमाई में उलझे हुए हैं। आवाम के पैसे से मंदिरें बनवाकर वहां पर अपनी तस्वीरें लगवा रहे हैं। दूसरी तरफ यूरिया की अलानिया कमी के सीन हैं। अजलाओं में किसान फिल्म की लाइन की तरह खड़े होकर यूरिया हासिल करने की कोशिश में है और कई तो खुदकुशियां भी कर लिए हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत की तरह टीआरएस हुकूमत भी अपना कसूर कबूल करने बिल्कुल तैयार नहीं है। लिहाजा इन्होंने आवाम पर एक बार फिर जोर दिया कि सभी ने टीआरएस को सत्ता में लाकर देख ही लिया है कि इसकी कारकर्दगी कैसी है। अब लोग क्या बल्दी इंतखाबात में भी इसे दोबारा लाएंगे? The minister was being brought to his notice. The way he has responded, if someone goes to the cinema theater for a cinema, he stands in a queue and if he dies, he is the responsibility of the cinema. I'm so sad to hear that the minister, honorable minister, when he's comparing the farmer who's standing in the queue for want of urea to a person who went and standing in the queue for a book. So this is what the respect that we have towards the farmers. It's so sad. I seriously condemn his statement and I also tell him to apologize to the farmers. And the other thing about the Silent Babu hospitals and the people's who have been suffering from fever, seriously, like viral fever, dengue, swine flu. And if you go to any hospital today, you find so many people standing in the queue for want of treatment, where you don't have doctors, no staff, no beds, no infrastructure, nothing. People are dying, and the minister says there's nothing. Apart from that, he responds, he talks and he speaks, he opens his mind, when he realizes that he's losing his ministership and he is losing his ownership on the flag, but he is not responding when the people are dying. So this is more important than your ministership. So I request the minister also, health minister, to respond when the people are dying, which is more important than your ownership on the flag. And the other thing is, third point, like Asia. It is not a kingdom, where he is trying to depict his photo on the structures of the temple. It is not a kingdom, it is a democratic country. It is a temple where you need not to depict the chief minister's photos there and his party symbol. It is insulting the temple and the particular religion. I'm sorry to condemn this, and he has not done great thing to Telangana. Earlier, people like Urugal Ramakrishna Rao, who brought Tenancy Act to this state and who has
created a right on the land as ownership by giving the pattas. And the Chief Minister, the then Chief Minister like P.V. Narasimha Rao, who was brought the land reforms and implemented seriously in the state of Telangana, part of Telangana, by taking out some feudal structure. And the person who is responsible, where we always quote his name, Dr. Baba Saheb Ambedkar. The smaller states is more viable for the administration, keeping that condition in the constitution, which we have taken it as a stand and fought for it, and finally got it. So it is the need of the hour is to keep the photos like Baba Saheb Ambedkar in the temple. And the Madam Sonia Gandhi, who is responsible for giving the Telangana. Instead of keeping these photos, if at all you want to keep, you are keeping your photo, which is, you have not done anything. I'm so sorry to say this. Hello, sir. Amma. Sir, I want your टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर जी नारायण रेड्डी ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में TRS हुकूमत के CM KCR को जबरदस्त तरीके से आड़ो हाथों लेते हुए बतलाया कि वो रियासत के डेमी गॉड बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया यादगिरी गुट्टा में अवाम के पैसे से तज़यीन की जाने वाली मंदिर में इन्होंने अपनी फोटो लगवाई जो काबिल मजम्मत है। इन्होंने मंदिर अपने पैसे से नहीं बल्कि अवाम के पैसे से बनाया है और वो अवाम के खादिम है, बादशाह नहीं। लेकिन वो मंदिर में अपनी फोटो लगवाकर अवाम से खुद अपनी पूजा भी करवाना चाह रहे हैं, तभी तो इन्होंने ऐसा किया। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब जो यादाद्री टेम्पल पब्लिक के पैसे से जो बना रहे हैं उसके ऊपर अपने फोटो और अपना TRS पार्टी का इलेक्शन सिंबल, कार और बाकी वरिष्ठ नेताओं का फोटोज पत्थर में वो लोग ये कर रहे हैं, लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लगाए भी थोड़े पत्थर में तराश। अच्छा, जो स्कल्पचर्स जो बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम उनको वार्न करना चाहते हैं। 4 करोड़ तेलंगाना का आवाम का पैसों से जो बना रहे अपने खुद के फोटो और अपने खुद के
जो भी सिंबल्स है उसके ऊपर लगाना आप बंद करना है, नहीं तो बहुत बड़ा इसके ऊपर पब्लिक में रेवोल्यूशन लाएंगे और ऐसे चीज और आगे नहीं हुए जैसा हम जरूर आपको सबक सिखाने का जरिया सोचेंगे आम पब्लिक के साथ। इससे पहले जो हजारों सालों पहले जितने भी मंदिरें बड़े राजा महाराजाओं ने बनाया, उसके ऊपर कोई राजा, चाहे वो काकतिया हो, चाहे कोई चोला हो, चाहे और कोई भी हो, कोई भी उस मंदिरों के ऊपर अपना खुद का नाम नहीं लिखाया। जैसा मस्जिदों पे भी वैसा ही होता है। जो भी मंदिर, मस्जिद या चर्च कोई भी बनाते हैं जिसके ऊपर अपना खुद का नाम या फोटो नहीं लगाते हैं, मूर्ख लगाते हैं, जो बेअक्लमंद है वो लगाते हैं। तो आप अपना अकल का दांत अगर खोए तो फिर सोचो। आप हर वक्त गूगल पे रहते हैं, कहीं भी कोई भी देवल के ऊपर बड़े बड़े राजा महाराजा जो आपसे पहले हजारों पहले जो पालन किए अपना देश में बड़े बड़े राष्ट्रों को, वो कभी कहीं करे क्या? अगर ऐसा किए तो आप भी अपना काम करिए, लेकिन ऐसे फालतू काम आम जनता का, हिंदुओं का, उनका मन को तकलीफ लाने का चीज जो आप कर रहे हैं, आप तुरंत बंद करिए और अपने जो भी है गलत चीजें हैं जो देवल के ऊपर, देवल के दीवारों पे रहो या देवल के अंदर रहो, सब तुरंत निकालना बोल के हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ थोड़े दूसरे पिक्चर्स भी लगाए बोल के हमने सुने, वो चाहे जवाहरलाल नेहरू का हो या महात्मा गांधी का हो, कोई भी बड़े बड़े वरिष्ठ नेता है अपना सूरत को कोई देवल के ऊपर रखना नहीं चाहते। कंसोलेशन के लिए आपका सामने लगा के, इनका कहीं पीछे लगा के, नहीं उनका भी हम लगाए बोलते, ये सब जरूरत नहीं है। देवल देवल ही रहना, मस्जिद मस्जिद ही रहना, चर्च चर्च ही रहना, या जो भी है अपने अपने मजहब के मुताबिक इज्जतदार जगह इज्जतदार के जैसा रहना, क्योंकि वो ऑलमाइटी का जगह है, होता है हर एक अपना अपना मजहब के मुताबिक। तो इसी तरीके से हमने उनको डिमांड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि तुरंत अपना वो सब फालतू चीजें देवल के ऊपर से निकालें। तेलंगाना के मशहूर जिले निजामाबाद के रेलवे पुलिस ने आज एक मुश्तबा मुसाफिर के पास से 85 ग्राम सोने के जेवरात और 91 लाख की नकद रकम बरामद कर जब्त कर ली और बतलाया कि यह सब आवाम से लूटा हुआ माल है। मुसाफिर की महाराष्ट्र के साकिन शेषगिरी राव की हैसियत से पहचान बतलाई गई। जिला एसपी राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस को बतलाया कि ये और उसके 3 दीगर साथी मिलकर लोगों को लूटा करते थे। इस मौके पर इन्होंने मुसाफिरों को आगाह किया कि अगर कोई 2 लाख के जायद की ज्वेलरी के साथ सफर करता है तो पहले वो टीटी को इस सिलसिले में मुतला करे और अपने जेवरात लॉकर में रखवा दे। శేషరావు అనే అతను జిప్ ఆపరేషన్ మరియు బ్యాగ్ లిఫ్టింగ్లో ఎక్స్పర్ట్. ఇతను ఒక గ్యాంగ్ ఫామ్ చేసి హరీష్, సంతోష్ మరియు దినేష్ అనే ముగ్గురితో పాటు ఇతను బేసికలీ కేరూర్ విలేజ్, నాందేడ్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. అక్కడే నాందేడ్ వాళ్ళతో ముగ్గురితో గ్యాంగ్ ఫామ్ చేసి నలుగురు కలిసి పర్లీ ఏరియాలో ఈ ట్రైన్స్లలో బ్యాగ్ లిఫ్టింగ్ చేయటము ప్లస్ ఈ జిప్ ఆపరేషన్ చేసి జిప్ ఆపరేషన్తో దొంగతనాలు చేసేవాళ్ళు. ఆ వచ్చిన ప్రాపర్టీని డిస్పోజ్ చేసి నలుగురు పంచుకునేవాళ్ళు. అలా పంచుకోవడం వల్ల తనకు తక్కువ వస్తుందని చెప్పి ఈ శేషరావు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళిపోయి ఆ గ్యాంగ్తో వేరైపోయి తన సొంతంగా అఫెన్సెస్ నేరాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. 2018-19లో 19లో ఆల్మోస్ట్ టోటల్గా మనకు ఈ నాందేడ్ నుంచి వచ్చే మన సికింద్రాబాద్ బౌండ్ ట్రైన్స్లలో ట్రావెల్ చేసుకుంటూ ఈ ట్రైన్స్లలో ఉన్న ప్యాసింజర్స్ ఎక్కువ లేడీ ప్యాసింజర్స్ని టార్గెట్ చేసుకుంటూ చంటి మ్యాక్సిమం అలాంటి హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ని వీళ్ళు టార్గెట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే చంటి పిల్లల తల్లులు ఒక హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఉంటే పక్కన తన వారు అంటే తనకు సంబంధించిన వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి తప్ప ఎవరిని పడితే వాళ్ళు నమ్మి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే ఈ విధమైన అఫెన్స్ జరుగుతున్నాయి. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే
మనము కనుక ప్రయాణికులు ఎవరైనా సరే 2 లక్షల కంటే ఎక్కువ విలువైన వస్తువులు కానీ విలువైన నగదు కానీ బంగారు వస్తువులు కానీ ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు తీసుకెళ్ళినట్టయితే ఆ విషయం టీసీగా నోటీసులో పెడితే మన లాకర్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అక్కడ. అంటే అటెండర్ ఉంటారు, అటెండర్కి ఇచ్చి ఆ లోపల బీరువాలో పెట్టి తాళం వేసి మళ్ళీ మనం దించున్నప్పుడు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఆ విధమైన ఫెసిలిటీ ఉంది. సో ఎక్కువ నగదు కానీ లేదా ఎంగేజ్మెంట్స్ కానీ శుభకార్యాలకు వెళ్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ ఫెసిలిటీని ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పని కోరుతూ ఆ విధంగా ఫెసిలిటీ ఉపయోగించుకున్నట్లయితే ఇలాంటి దొంగల చేతిలో పడకుండా బారిన పడకుండా సురక్షితంగా అండ్ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన లేకుండా హ్యాపీగా జర్నీ జరుగుతుందని చెప్పని మీ డెస్టినేషన్ మీరు రీచ్ అవుతారని చెప్పని మా యొక్క జీఆర్పీ మరియు ఆర్పిఎఫ్ తరఫున అందరినీ మేము విన్నవిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. అయితే మన లాకర్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అక్కడ. అంటే అటెండర్ ఉంటారు, అటెండర్కి ఇచ్చి ఆ లోపల బీరువాలో పెట్టి తాళం వేసి మళ్ళీ మనం దించున్నప్పుడు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఆ విధమైన ఫెసిలిటీ ఉంది. సో ఎక్కువ నగదు కానీ లేదా ఎంగేజ్మెంట్స్ కానీ శుభకార్యాలకు వెళ్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ ఫెసిలిటీని ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పని కోరుతూ ఆ విధంగా ఫెసిలిటీ ఉపయోగించుకున్నట్లయితే ఇలాంటి దొంగల చేతిలో పడకుండా బారిన పడకుండా సురక్షితంగా అండ్ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన లేకుండా హ్యాపీగా జర్నీ జరుగుతుందని చెప్పని మీ డెస్టినేషన్ మీరు రీచ్ అవుతారని చెప్పని మా యొక్క జీఆర్పీ మరియు ఆర్పిఎఫ్ తరఫున అందరినీ మేము शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा ने आज इलाके की मांगड़ बस्ती के गरीब लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मानिया नायक के साथ दौरा किया और वहां के लोगों के बहुत सारे मसाइल पर तबादले ख्याल किया। वाज़ेह है कि इनसे कबल वहां के साबिक़ा इंस्पेक्टर मधुकर स्वामी ने भी उस बस्ती के लोगों को सीधा करते हुए काम पर कारोबार पर लगवाया। बहुत सारे लोगों को एससी कमीशन से पैसा भी दिलवाया। इनके ज़रिए से बहुत सारे पेंशन भी वहाँ के लोगों ने हासिल किए। अब इनकी जगह पर नए इंस्पेक्टर वो सारे काम अंजाम दे रहे हैं। मैं शिवचंद्रा इंस्पेक्टर हबीबनगर आज साहब एससी कॉरपोरेशन एससी एसटी कॉरपोरेशन का ईडी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मान्या नायक साहब और ईओ साहब रामुलु सर पहले इधर इंस्पेक्टर हबीबनगर करके अभी कारखाना को गया। ये साहब मधुकर स्वामी सर पूरा मिलके इधर आ गया। पूरा इधर क्या प्रॉब्लम है वो पूरा वो साहब एससी कॉरपोरेशन ऑफिसर्स को बताए। इधर एससी कॉरपोरेशन वाला क्या बोला उसको क्या होना बोले तो वो बोलने को भी नहीं आ रहे अभी वो पढ़ने नहीं वो पूरा फिर के आया पूरा इंक्वायरी भी कर लिए। इसके वास्ते पूरा इंफॉर्मेशन लेना फैमिली सर्वे करना एक बार फैमिली सर्वे करने के बाद किसको कितना मेंबर है बच्चा है ऐसा पूरा इंक्वायरी करने के बाद उनको कैसा पढ़ाना पहले एजुकेशन देना उनको वो बाद में एजुकेशन पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बाद में ये उनको गवर्नमेंट से क्या क्या आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है ऐसा पूरा उनको बताना। गवर्नमेंट स्कीम की उन्होंने एलिजिबल है तो वो एलिजिबल का बारे में इनको करने का रेडी है। वो पहले इनको सर्वे करे तो मालूम हो जाते उसके लिए इधर आएगा। मधुकर साहब सर इधर पहले इंस्पेक्टर हबीबनगर करके गया। साहब बहुत ये मांगर बस्ती वाला बहुत प्यार करे साहब को बहुत ऐसा को साहब आए तो पूरा साहब के वास्ते पूरा मिलके साहब क्या वो होना साहब मेरा ये होना साहब ऐसा बोल के बोल रहा है। वो साहब ऐसा मिल गए उनसे मिल गए ये ऐसा वो करने का बहुत इम्पोर्टेंट है वो कर लेना पड़ता अभी। वो रेवेन्यू वाला भी इधर आके रेवेन्यू वाला जीएचएमसी वाला वो पूरा मिलके गए तो मिलके वो करे तो वो मांगर बस्ती अच्छा बस्ती बन जाते। अच्छा बस्ती बन जाने के लिए पूरा मिलके करना। पुलिस वाला भी हम कोऑपरेट करूं उसके लिए जीएचएमसी वाला पूरा मिलके आए तो हम भी कोऑपरेट करके चल जाते। आज मांगर बस्ती में एससी कॉरपोरेशन का ईडी और हबीबनगर का इंस्पेक्टर शिवचंद्र साहब और पूरा टीम मिलके आज मांगर बस्ती में विज़िट कर रहे थे।
आपको सबको मालूम है, इससे पहले सब डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पर मीटिंग लगाए थे। इससे पहले बहुत प्रॉब्लम क्या है बोल तो इन लोगों को कैस्ट सर्टिफिकेट नहीं देते थे। इससे पहले आरडीओ और एमआरओ आके पूरे लोगों को इन लोगों का कैस्ट मांगरोड़ी है, वो कम्युनिटी वाइज एससी होता बोल के सब लोगों को रेवेन्यू वाले समझ के पूरे लोगों को एससी सर्टिफिकेट दिलाए थे। बाद में जो कुछ सर्टिफिकेट्स होना गवर्नमेंट के तरफ से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ यहाँ पर इन लोगों को कोशिश करके पूरे लोगों को दिलाए थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एलिजिबिलिटी पर्सन्स को पेंशन्स भी आ रहे हैं, मगर बहुत लोगों को और आने का है। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। ड्रेनेज ओपन ड्रेनेज चल रहे हैं, उनका घरा भी बाजू किचा है, उधर ही पका रहे, खाना पका रहे, खाना खा रहे। बच्चों को बहुत वीक है, एनीमिक पेशेंट्स है सब। अभी आज हॉस्पिटल में देखे तो डेली एक छोटा बस्ती में ऑलमोस्ट ऑल 200 to 300 पेशेंट्स डेली हॉस्पिटल को विज़िट कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा वायरल फीवर, डेंगू फीवर से यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा और बहुत बच्चों ने एनीमिक है, कोई खाने का में थकियत नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, उसके लिए बहुत वीक है। एजुकेशन के लिए भी कोई स्कूल को नहीं जा रहे। ये पूरा प्रॉब्लम्स है, ये सबके डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके करने का है। ज़्यादा से ज़्यादा जीएचएमसी पीपल उन लोगों आके गार्बेज निकालना है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम रेक्टिफाई करना है, उसका तबीयत के लिए, हेल्थ के लिए डॉक्टर्स तो यहाँ पर है, अच्छा डॉक्टर है, बस्ती में दवाखाना है, अच्छा डॉक्टर भी है, मगर वो डॉक्टर को पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, मगर पेशेंट्स को किस लिए वहाँ ज़्यादा फेवर्स आ रहे हैं, ये चीज़ अपन देख लेना है। ज़्यादा ओपन ड्रेनेज होने से पूरा ये वायरल फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसको अगर जीएचएमसी पीपल ने रेक्टिफाई करे तो ओपन ड्रेनेज रेक्टिफाई करके गार्बेज निकाल दिए तो ये प्रॉब्लम्स उनका फेवर नहीं आते थे। और एजुकेशन भी अभी आप लोगों को बता दें, एजुकेशन से ही अपने को चेंज होता, एजुकेशन नहीं होने से चेंज नहीं होता, अपना डेवलपमेंट एजुकेशन से ही होता। ये बच्चों को अच्छा स्कूल भी है, अगर बाहर भी स्कूल्स अच्छा डेवलपमेंट है, एससी कॉर्पोरेशन का स्कूल्स बहुत अच्छा है। ये बच्चों को थोड़ा एजुकेशन, पेरेंट्स को एजुकेट करके इन लोगों को स्कूल को एडमिशन दिलाना, अच्छा पढ़ाने के लिए अभी पुलिस डिपार्टमेंट भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। और इधर एससी कॉर्पोरेशन वाले अपने को वादा करा था, इससे पहले भी अपने को वादा करा, उन लोग जो कुछ पेंशन्स नहीं आ रहे वो पेंशन्स वाले रेवेन्यू वाले देख रहे हैं। जो कुछ अभी लोन देने का है, कोई एड्स पेशेंट्स है उनको 50,000 देने के लिए साहब ने अभी बता दिए थे। फिजिकली चैलेंज जो कि लंगड़ा होता उन लोगों को भी रेगुलर पेंशन के लिए एमआरओ ऑफिस और लोन के लिए एससी कॉर्पोरेशन वाले देने के लिए अभी प्रॉमिस करे थे। इसके अलावा भी बहुत स्कीम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट अपने को डेवलप करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी भी आज तीनों डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट, एससी कॉर्पोरेशन के साथ अभी आज विज़िट करा और नेक्स्ट हफ्ते के बाद गणेश इमर्शन के बाद जीएचएमसी पीपल और हेल्थ पीपल सब डिपार्टमेंट के साथ एजुकेशन वाले आके एक बार विज़िट करने के बाद प्लान ऑफ एक्शन, एक रोड मैप रख के क्या क्या करना, कौन सा डिपार्टमेंट वाला क्या करना है, लोन्स कैसे देना है, इन लोगों को ट्रेनिंग कैसे दे के उनको एजुकेट कैसे करना है, ये पूरा चीज़ देख के पेंशन देना है, ना लोन देना है, ना एजुकेशन करना है, हेल्थ इश्यूज़ है, ये पूरा देख लेके बच्चे को सब मिल के करेंगे बोल के मैं उम्मीद कर रहा हूँ। थैंक यू। बी मान्या नायक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एससी कॉर्पोरेशन हैदराबाद ज़िला का हूँ। मैं इधर पहले टाइम ये कॉलोनी को आया था, इधर देखे तो बहुत ये कॉलोनी वाले प्रॉब्लम में है बोल के सोच रहा हूँ। पहले फर्स्ट क्या बोले तो इधर एजुकेशन में पूरा बैकवर्ड है। एजुकेशन में जो कहाँ एजुकेशन में डेवलप होते हैं वो एरिया में पीपल सब डेवलप होते हैं। पहले से इधर कोई भी एजुकेशन साइड में नहीं दिख रहा। कोई एजुकेशन साइड में रहे तो हमारे पास आए तो हम एससी कॉर्पोरेशन में क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या दे रहे, कौन सा है, पढ़ने वाले को क्या है, मगर बगैर पढ़ने वाले को क्या है कोर्स बोल के हमारे पास रहता। हम भी साहब का साथ से हम पहले बार आए थे और एक टाइम इधर आको अब थोड़ा मर्द आदमी बाहर गए थे, अब वो आए तो और एक दिन यहाँ मीटिंग डाल को, एक माइक डाल को, एक सिस्टमेटिक में यहाँ सब का इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ किन को क्या होना बोल के मेरे को बोले तो मैं एससी कॉर्पोरेशन के साथ उसमें सब को हेल्प करने का रेडी हूँ बोल के मैं बोल रहा हूँ। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल
MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद को जिले महबूबनगर से मिलाने वाली कौमी सड़क पर वाक़े कोतूर के लोगों ने आज महकमे पुलिस हैदराबाद के लोगों को खबरदार किया कि इस सड़क पर ट्रैफिक 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और अभी इसकी जद में आकर 25 जानें मुतासरा हो गई हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अगर पुलिस फौरी इस तरफ तवज्जो नहीं देती है तो समझिए कि मजीद जानों का इतलाफ हो सकता है। शहर हैदराबाद की गोलकुंडा पुलिस के एडिशनल इंस्पेक्टर पी राजेश ने अपने स्टाफ की मदद से टोली चौकी के एक फंक्शन हॉल के पास से गांजे के एक बड़े जखीरे पर हाथ डाला और उसके कारोबारी 4 लोग जे मस्तान, राजू राठौड़, आनंद राठौड़, बी रमेश वगैरह को गिरफ्तार करते हुए 71 किलोग्राम गांजे के बड़े जखीरे के साथ साथ उनकी एक 4 व्हीलर और 5 सेल फोन्स भी बरामद कर जब्त कर लिए और कारोबारियों को अदालत में पेश भी कर दिया। इस केस में एसीपी आसिफ नगर डिवीजन एन नरसिम्हा रेड्डी की निगरानी में इंस्पेक्टर के चंद्रशेखर रेड्डी की क़ियादत में एडिशनल इंस्पेक्टर पी राजेश और एसआई के सतीश रेड्डी ने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। నిన్న మధ్యాహ్నం 12 గంటల ప్రాంతంలో మార్షల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు పోయి పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఒక 4 వ్యక్తులు కారులో గంజా తీసుకొని వచ్చేసి రిజిస్ట్రీ గార్డెన్ దగ్గర ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటున్న ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో అతను ఇమీడియట్గా పై అధికారులకు అందరికి తెలియపరిచి సిబ్బందితో పాటు రిజిస్ట్రీ గార్డెన్ టోల్జీకి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కారు దగ్గర 4 వ్యక్తులు వాళ్ళ పొజిషన్లో ఒక 3 బస్తాలు ఉన్నటువంటి కనిపించడం జరిగింది. వెంటనే పంచులను పిలిపించేసి అక్కడ బ్యాగులన్నీ తనిఖీ చేయగా ఆ 3 బ్యాగుల నిండా కూడా గాంజా నింపబడి ఉంది. అవి అందాజా 70 కేజీల పైన ఉన్నాయి. ఆ 4తో పాటు ఆ వెహికల్ను తర్వాత మా ఆర్డర్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు పిఎస్ తీసుకొచ్చి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడంతో మేము వారిపైన కేసు నమోదు చేసుకొని ఇవాళ రిమాండ్కి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇందులో 4 గురించి విచారించగా ఆ A1 జరిపోతుల మస్తాన్, ఇతను నేటివ్ ఆఫ్ పెన్పహాడ్ మండల్, సూర్యాపేట డిస్టిక్. ఇతనుకు 3 అక్కలు ఉన్నారు. వాళ్ళకు పెళ్ళిళ్ళు చేయడం వల్ల అప్పులతో కూరుకుపోయారు. అప్పు నుంచి బయటపడడం కొరకు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు వీళ్ళ పక్క విలేజ్లో ఉన్నటువంటి సంతోష్, నాగరాజు వాళ్ళ గతంలో ఎన్డీపీఎస్ కేసులో అరెస్ట్ చేయబడి జనగాం జైల్లో ఉన్నారు. సో ఇతను జైలుకి వెళ్ళేసి వాళ్ళతో కలిసి ఎన్డీపీఎస్ సంబంధించినటువంటి కాంటాక్ట్స్ తీసుకున్నారు. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।